مسیح کی محبت میں پاسٹر جنید جوید کی طرف سے آپ سب کو ورڈ آف گاڈ پروگرام میں بہت بہت سلام۔ میرے عزیزو، امید واسق ہے آپ یسوع مسیح میں سلامتی سے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں، سب سے پہلے میں پاک روح کا شکر گزار ہوں، خدا کا شکر گزار ہوں، اور بشپ پولوس مسیح چیئرمین گڈ شیپ ٹیلی ویژن کا بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ مختلف آدمین کی زبانی کلام مقدس آپ سیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ میں خدا کے پاک روح کی شکر گزاری کرتا ہوں جو آج خدا کے پلان کے مطابق یہ ممکن ہو سکا کہ میں کلام مقدس کی بات آپ کے ساتھ کر سکوں۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں سے ہم آج دعا کے بارے میں سیکھیں گے۔ ہم دعا کی فاؤنڈیشن کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ کسی بھی چیز کی بنیاد کو سمجھنا، کسی بھی بات کی بنیاد کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 6 آیت میں سے، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اور اس کے 6 باب کے اندر ہم اگر 5ویں آیت میں آئیں تو اس سے پہلے ایک ہیڈنگ لکھی ہے، دعا کے بارے میں تعلیم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تعلیم حاصل کر کے اس کام کو پراپرلی کیا جائے تو اس کا رزلٹ اور بھی زیادہ بہتر منظر عام پر آتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یقیناً آپ اس بات سے بخوبی واقف ہو بھی سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے زمین پر جتنا وقت خدمت کا گزارا ہے، بے شک یسوع مسیح نے معجزات کیے، بے شک یسوع مسیح نجات کے کام کے لیے آئے جو کہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے، لیکن سب سے زیادہ یسوع مسیح نے اس زمین پر اگر کوئی کام کیا ہے تو وہ دعا کی ہے۔ میرے عزیزو، شاگرد یسوع مسیح کو فالو کرتے تھے۔ شاگردوں نے جب اپنے استاد کو دیکھا کہ ہمارا استاد دعا میں بہت زیادہ وقت گزارتا ہے، ہمارا استاد اکیلے میں پہاڑ پر چلا جاتا ہے اور دعا کرتا ہے، تو انہوں نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ ہم بھی اپنے استاد سے، یسوع مسیح سے یہ درخواست کریں کہ ہمیں دعا کرنا سکھا۔ دیکھیں، کلام مقدس کی اپنی تاثیر ہے، ورشپ کی اپنی تاثیر ہے، بلیسنگ ہے، لیکن شاگردوں نے یسوع مسیح کو یہ نہیں کہا ہمیں ہارمونیم بجانا سکھا۔ شاگردوں نے یسوع مسیح سے کسی میوزک سیکھنے کی درخواست نہیں کی۔ شاگردوں نے کچھ اور سیکھنے کا نہیں کہا، بلکہ شاگردوں نے کہا ہمیں دعا کرنا سکھا۔ یہاں پر کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے باقاعدہ طور پر ٹیچنگ دی ہے، یہاں پر سانچے میں ہمیں ڈھالا گیا ہے۔ میرے عزیزو، دعا کرنا تو دور کی بات، سب سے پہلے ہم دعا کی فاؤنڈیشن کو اگر سمجھیں گے، دعا میں اگر ہم بیٹھنا سیکھ جائیں گے، اگر ہم دعا کی حالت کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے گھر میں بچہ بھی اکارڈنگ ٹو بائبل دعا کرنے لگ جائے گا۔ آپ کی آنے والی نسلوں کی دعائیا حالت ایگزیکٹلی اکارڈنگ ٹو بائبل ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے کہا بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا۔ بعض اوقات کئی لوگ اس ورس کو اس طرح سے بھی لیتے ہیں کہ یہ اس آیت کا مطلب شاید ایک بیٹھک میں بیٹھ کر دعا کرنے کے ساتھ ہے، کیونکہ کوٹھڑی کا جو لفظ ہے زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ کمرے کی بات کی جا رہی ہے، ایک بیٹھک کی بات کی جا رہی ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا تعلق صرف ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر دعا کرنے کے ساتھ صرف نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت آپ کمرے میں نہیں بھی ہو سکتے۔ تو یہاں پر سب سے بڑھ کر اگر ہم لفظوں کے اوپر جائیں تو لکھا ہے بلکہ جب
तू दुआ करे। तो लफ्ज जब ये साबित करता है कि एवरी कंडीशन ऑफ प्रेयर, दुआ की कोई भी हालत हो सकती है। अगर आप चर्च में दुआ कर रहे हैं तो भी ये आयत उसके ऊपर जो है पूरी पूरी उतरती है। अगर आप कन्वेंशन हॉल में बैठे हुए और दुआ का सेशन शुरू हो चुका है तो तब भी ये आयत बिल्कुल एग्जैक्ट पूरी उतरती है। अगर आप अकेले दुआ कर रहे हैं तब भी ये आयत बिल्कुल एग्जैक्ट पूरी उतरती है। सो मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर लिखा है बल्कि जब तू दुआ करे। सो जब भी हम दुआ करें हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक किस तरह से अपने आप को दुआ की हालत में रखे हुए हैं। कलाम मुकद्दस में बकायदा स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, इसी एक आयत को मजीद समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर बकायदा तौर पर लिखा है बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा। लेकिन पहले हम इतने ही लफ्जों पर रहेंगे, बल्कि जब तू दुआ करे। मेरे अजीजों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हर इंसान की एक सीक्रेट प्लेस है। सीक्रेट प्लेस से मुराद मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे यहां पर आयत के अंदर पोशीदगी का लफ्ज भी यूज हुआ है। जब हमारा आसमानी बाप हमें पोशीदगी में भी देख रहा है तो जरूर है कि हमें भी पोशीदगी में जाना होगा। सो हर इंसान की एक सीक्रेट प्लेस है। एक शोहर अपनी बीवी के साथ इस सीक्रेट प्लेस को शेयर नहीं कर सकता, एक बीवी अपने शोहर के साथ इस सीक्रेट प्लेस को शेयर नहीं कर सकती। सो मेरे अजीजों, ये आपका अपना शख्सी तजर्बा है, क्योंकि हर इंसान का पर्सनल खुदा के साथ एक लिंक जुड़ा हुआ है। आपकी एक खुदावंद के साथ अलग से एक जो है आपकी कन्वर्सेशन है। सो जरूर है कि मेरे अजीजों, आप इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपने सबसे पहले दुआ में जब आपने आप को जो है लेकर जाना है तो आप खुदा की हजूरी को समझें। खुदा की हजूरी में अपने आप को सबसे पहले सेटल करना, ये एक मेन काम है। हम आज सीख रहे हैं दुआ की फाउंडेशन के बारे में, हम दुआ की हालत के बारे में बात कर रहे हैं, हम बुनियादी चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमने दुआ में बैठना कैसे है, हमारी दुआया हालत कैसी होनी चाहिए। सो मेरे अजीजों, हर इंसान सबसे पहले इस पोशीदगी का तजर्बा करे। शख्सी तौर पर खुदा की पाक जात, पाकरू की हजूरी का तजर्बा आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मेरे अजीजों, इस बात को हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हम सबसे पहले खुदा की हजूरी का तजर्बा करने वाले हूं। कितनी कितनी देर मैंने यह तजर्बा किया है कि खुदा के साथ उसकी हजूरी को अंडरस्टैंड करना, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। मेरे अजीजों, आप ये तजर्बा मजीद कैसे कर सकते हैं? अगर आप किसी चर्च में बैठे हैं तो दुआ का सेशन शुरू हो चुका है और आप दुआ कर रहे हैं, तो आपको ये इल्म नहीं होना चाहिए कि मेरे आगे कौन बैठा है, मेरे पीछे कौन बैठा है, मेरे लेफ्ट साइड पे कौन बैठा है, मेरी राइट साइड पे कौन बैठा है। आपको ये इल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा कई लोगों के जहन में ये चल रहा होता है कि मैं इस भाई से बोलता नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे आगे बैठा है, ये मेरे साथ बैठा हुआ है, ये मेरे लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है, ये मेरे पीछे बैठा हुआ है। तो एक अलग सी हलचल जहन में चल रही होती है। जब हम खुदा की हजूरी में होंगे तो फिर इन बातों की जरूरत नहीं होगी। फिर क्या होगा कि आप हैं और आपका खुदा है, आप हैं और रूहुल कुदस है, आप हैं और यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, जब आप खुदा की हजूरी में होंगे तो आपके इर्द गिर्द चाहे कितना ही शोरगुल क्यों ना हो, आपको परवाह नहीं होगी। इसी तरह हम अगर आगे देखें तो लिखा है, अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। तो हम अब बात करेंगे अपनी कोठड़ी में जाने की। अपनी कोठड़ी में जा, इससे क्या मुराद है? मेरे अजीजों, यहां पर कोठड़ी से मुराद सिर्फ कमरा ही नहीं है, कोठड़ी से मुराद सिर्फ आपकी बैठक ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी दूसरे शहर में मुनादी करने के लिए जाता हूं, अंजील की मुनादी करने के लिए जाता हूं और गाड़ी में बैठा होता हूं और मुझे दौरान सफ़र खुदा की तरफ से ये बोझ मिलता है कि मैंने दुआ करनी है। तो मैं कभी भी गाड़ी वाले को ये नहीं कह सकता कि भाई आप गाड़ी को मूव करो और मुझे मेरे घर पर पहुंचाओ, मैंने बैठक में जाकर दुआ करनी है। कभी भी वो गाड़ी वाला गाड़ी को मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसमें और भी मुसाफिर होंगे और ऐसा करना नामुमकिन होगा उसके लिए। तो फिर क्या हमें करने की ज़रूरत है? मेरे अज़ीज़ों, हम
उस गाड़ी में बैठकर ही अगर चाहें तो अपनी कोठड़ी को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये कोठड़ी सबसे पहले आपका दिल है। मेरे अजीजों, हमें इस कोठड़ी का तजर्बा भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आप इस कोठड़ी के अंदर नहीं आए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लिखा है अपनी कोठड़ी में जा। जब किसी मेहमान ने आना होता है तो हम अपने घर को साफ करते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, खुशी से भरे हुए होते हैं। सो आप सब जानते हैं मेरे अजीज़ों कि हम सब मसीह यीशु का बदन हैं। खुदा का रूह इन बदनों के अंदर बसा हुआ है। खुदा का रूह इस बदन के अंदर है। सो मेरे अजीज़ों, हम रूहुल कुद्दुस को वेलकम करने के लिए अपनी इस कोठड़ी को ज़रूर देखें, ताकि जब खुदा विजिट करे, जब रूहुल कुद्दुस विजिट करे, तो वाकई ही हमारी दुआया हालत, हमारी कोठड़ी की जो हालत है वो अकॉर्डिंग टू बाइबल होनी चाहिए। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर दरवाज़ों का जिक्र आया है। लिखा है दरवाज़ा बंद करके। ये दरवाज़ा भी एक गहरा भेद है। इससे पहले कि मैं दरवाज़ा को डिफाइन करने की कोशिश करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेशक खुदा ने ज़मीन आसमान, खुदा ने परिंदों को, खुदा ने सब कुछ खुदा ने बनाया। लेकिन जब खुदा ने इंसान को बनाया तो बेशक ये खूबसूरत और बाबरकत हकीकत है कि खुदा ने इंसान को बनाया, लेकिन यूं कहना भी गलत ना होगा कि खुदा ने जब इंसान बनाया तो खुदा ने अपना घर बनाया। सो मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि एक जो बिल्डिंग होती है, एक जो घर होता है, उसका मेन दरवाजा भी होता है और उसकी खिड़कियां भी होती हैं। सो यहां पर लिखा हुआ है दरवाजा बंद करके। सो बेशुमार ऐसे भी लोग हैं, बेशक मैं सबको इसमें शामिल नहीं करता, लेकिन ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की भी है जो दुआ की हालत में तो बैठ जाते हैं, लेकिन उन्होंने दरवाजा को अंडरस्टैंड नहीं किया होता, दरवाजा बंद नहीं किया होता। और कई लोग समझते हैं कि कोठड़ी से मुराद सिर्फ हमारी बैठक है, एक कमरा है, और दरवाजा से मुराद हमारे घर का मेन दरवाजा है या हमारी बैठक का दरवाजा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक गहरा भेद है। ये दरवाजा सबसे पहले आपके दिल का दरवाजा है। सो मेरे अजीजों, आप अपने दिल के दरवाजे को सबसे पहले नंबर पर बंद कीजिए, और दरवाजा वही बंद होगा जो पहले खुला हुआ होगा। कभी भी बंद दरवाजा तो बंद नहीं हो सकता, वो तो ऑलरेडी बंद है। इसका मतलब है कि सबसे पहले दरवाजा खोलना है। और दरवाजा क्यों खोलना है? दरवाजा इसलिए खोलना है क्योंकि आप इस बात को समझिएगा कि आप में से बथेरों के दिल में एक जो है किराएदार रहता है। बथेरों के दिल में एक किराएदार रहता है और बड़ी देर से वो रहता है, और कई लोगों ने उस किराएदार को बहुत ज्यादा फ्री किया हुआ है। दरवाजा इसलिए खोलना है ताकि इस किराएदार को बाहर निकाला जाए इस कोठड़ी से। जब आप यीशु मसीह के नाम से इस किराएदार को, अबलीस को कोठड़ी में से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? वो दरवाजे से बाहर हो जाएगा और दरवाजा के अंदर खुदा होगा, दरवाजे के अंदर रूहुल कुद्दुस होगा, दरवाजे के अंदर यीशु मसीह होगा और आप होंगे। और फिर आप दरवाजा जब बंद करेंगे तो फिर वाकई अकॉर्डिंग टू बाइबल आप कोठड़ी को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और आपने वाकई कोठड़ी की हालत को समझा होगा आपने, और आपने इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखा होगा, क्योंकि ये कोठड़ी पाक है, मकदस कहा गया है। सो मेरे अजीजों, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम एक बिल्डिंग भी हैं, खुदा ने अपना घर तैयार किया। खुदा ने जब इंसान को बनाया तो मेरे अजीजों, हम इस बात को समझें कि बिल्डिंग की खिड़कियां भी होती हैं। अपने जहनों की खिड़कियों को भी बंद करने की ज़रूरत है ताकि गैर ज़रूरी ख्यालात हमारे जहन में मुंतशिर ना हों। कानों की खिड़कियों को बंद करने की ज़रूरत है ताकि गैर ज़रूरी आवाज़ें हमारे कानों में ना आएँ। कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोग दुआ करने लगते हैं और उनका माइंड कहीं और चला जाता है। दुआ का पोज तो बड़ा अच्छा होता है,
मैं किसी की दुआ का मजाक नहीं उड़ा रहा, ना ही मुझे हक है, लेकिन आपको समझाना चाहता हूँ। हाथ बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने बांधे होते हैं, दुआ का पोज के लोगों का बड़ा अच्छा होता है, लेकिन वो दुआ कर रहे होते हैं लेकिन पहुंचे कहीं और होते हैं। इब्लीस ने उनके ख्यालात को कैप्चर कर लिया होता है। इसलिए दरवाजे को, खिड़कियों को बंद करना बड़ा ज़रूरी है, इब्लीस की नाकाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। और फिर हम एंड पे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस में, दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। फिर हमारी जाकर दुआ शुरू होती है पोशीदगी में। यहां पर लिखा अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। पोशीदगी लफ्ज बार बार आपको इस आयत के अंदर मिलेगा। फिर हमारी दुआ शुरू होती है और एंड पे लिखा है इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मेरे अजीजों, बदला फिर मिलेगा, रिप्लाई फिर मिलेगा, रिस्पॉन्स फिर मिलेगा। अगर आप समझ जाएंगे कि इस सूरत में अगर आपने इब्लीस की नाकाबंदी की होगी, अगर आपने कोठरी को अंडरस्टैंड किया होगा, अगर आपने दरवाजा बंद किया होगा, अगर आपने खुदा की हजूरी को समझा होगा, अगर आपने दुआ की फाउंडेशन के ऊपर अमली तौर पर आपने अपने आप को रखा होगा, तो फिर दुआ आपकी आलम बाला पर पहुंचेगी। इस सूरत में खुदा आपको बदला देगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस आयत को जो है एंड वाले अल्फाजों को उठाकर पहले नंबर पर लेकर आने की कोशिश की है। बदला लोग पहले चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने तालीम दी है और ये बदले वाली बात, रिप्लाई की बात, रिस्पॉन्स की बात एंड पे की गई है। सो ज़रूर है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी दुआ करें आप इस फाउंडेशन पर ज़रूर गौर कीजिएगा, ताकि हमारी अपनी भी दुआ और हमारी आने वाली नस्लों की दुआ अकॉर्डिंग टू बाइबल हो जाए। सो मेरे अजीजों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग इब्लीस की नाकाबंदी नहीं करते और दुआ को शुरू कर लेते हैं। हो सकता है कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, सुनने वाले नाजरीन ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हों, लेकिन मेरे अजीजों, कई लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ये कलाम आज नया है, ये पॉइंट्स नए हैं। आपने जरूर दुआ से पहले इब्लीस की नाकाबंदी करनी है। और एक ईमानदार मसीही को इल्म है कि जब एक ईमानदार दुआ करने लगता है, इब्लीस उसी वक्त सबसे ज्यादा परफॉर्म में आता है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब दुआ के लिए अपनी हालत संभालते हैं ना, तो इब्लीस भी अपनी हालत संभालता है, इब्लीस भी एक्टिव हो जाता है। कई लोग मुझे फोन कॉल करके कहते हैं कि पास्टर जी, हम दुआ करते हैं तो हमें नींद आ जाती है। कई लोग अपने मामलात डिस्कस करते हैं। तो ये सारा इब्लीस का बिछाया हुआ जाल होता है। सो हमेशा आप दरवाज़ा को बंद कीजिएगा, कोठरी को समझिएगा। और ख़ास तौर पर यहाँ पर लिखा है कि इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा, यानी कि सब कुछ करेंगे तो फिर ही आपको बदला मिलेगा। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप जब इस तालीम के मुताबिक, यीशु मसीह की सिखाई हुई इस दुआ के मुताबिक, इस फाउंडेशन के मुताबिक दुआ करेंगे, तो आपकी दुआ और आने वाली नस्लों की दुआ अकॉर्डिंग टू बाइबल हो जाएगी। सो खुदा मुझे आपको इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम में जिंदा आसमानी बाप, मैं ईमान रखता हूं आज कलाम मुकद्दस की जो बात GS टेलीविजन के थ्रू इस प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंची है, यह कलाम की बात सुनने वाले लोगों की रूह में उतरी है। आए प्यारे आसमानी बाप, मैं ईमान रखता हूं यह कलाम जहां जहां पर सुना गया है वो जिंदगियां बहाल हुई हैं। मैं ईमान रखता हूं कि बथेरे लोगों की दुआया जिंदगी इस सरमन के वसीला से और ज्यादा बहाल हो जाएगी। आए प्यारे आसमानी बाप, गुड शेफर्ड टेलीविजन के लिए और इनके चेयरमैन बिशप पौलुस मसीह साहब के लिए और तमाम टीम के लिए मैं बरकत की दुआ करता हूं। आने वाले वक्त में इस मसीही चैनल को और ज़्यादा ब्लेस करना और खुदावंद सुनने वालों को भी और बरकत देना, और वर्ड ऑफ गॉड के इस प्रोग्राम के वसीला आने वाले वक्त में भी लोग मुख्तलिफ आदमीन की सूरत में तेरा कलाम सुनते रहें और बरकत पाएँ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन।